Good morning, students. Today we will start our next video, that is dual behavior of electromagnetic radiation. Students, during the period of development of new models to improve Rutherford model of an atom, two new concepts played a very important role. So before we start the Niels Bohr model, that is the next model, to understand these two models or these two theories are very important. The first is dual behavior of electromagnetic radiation, and second is atomic spectra. In most of the experiments, in most of the discoveries, as we are using light, we are using the radiation. So to know about light is very important. And what they are saying that light has both particle-like and wave-like properties. So we will understand what that properties are one by one. First, we will talk about the wave nature of light. In the earliest view of light, due to the Newton or the other scientists, they what they said that the particle nature of light explains some of the experimental facts such as reflection and refraction of light. However, they failed to explain the phenomena of interference and diffraction. But the next theories discarded, and Huggins proposed wave-like character of light. With the help of wave theory of light, he explained the phenomena of interference and reflection. He said that light shows all the properties like refraction, reflection, interference, and diffraction. So all these things prove that light behaves like a wave. Light has a wave characters. Okay, so corpuscles of light, that explains the particle nature of light, but the reflection, refraction, interference, and diffraction, these all things, these all are your physics terms you people must have studied, or maybe you will study about reflection and refraction. You people must have studied in ninth and 10th, and about interference and diffraction you are going to study in 11th or 12th also. So what they said that light has a wave nature. Now because light has a wave nature, so it is very important to understand the characteristics of a wave. What they said that light is a transverse wave. Transverse wave means if you are having like a rope in your hand, and you have binded that, you are binding that rope with somebody, and then you are shaking that rope, it will go up and down. So that is the transverse motion. So later on it has been proved that light is the electromagnetic radiation, but in earlier time what they have said that light uh, behaves like a transverse wave. So here we will study some of the characteristics of wave. So wave, this is a wave. Sure. In a wave there are 2 points. The point of maximum upward displacement, this is called as crest, and the downward displacement, that is called as trough. Okay, so these are the crests and troughs. So first we will talk about the wavelength, which is represented by lambda. This is lambda. This is the sign of lambda. And this is wavelength. What is wavelength? Wavelength is a distance of one wave from another wave. Means the distance between two adjacent crests or two adjacent troughs is called as the wavelength. That is called as a wavelength. We can express the wavelength in Armstrong also. One Armstrong is equivalent to 10 to the power minus 10 meter. In nanometer, 1 nanometer is equivalent to 10 to the power minus 9 meter. And in picometers also, 10 to the power minus 12 meter. 1 picometer is equivalent to 10 to the power minus 12 meter. So it's a very small distance, and what you can say, the distance between two waves is called as the wavelength, and we represent it by lambda. Then the frequency. What is frequency? The number of cycles a wave takes in a second. Suppose these are the number of waves which uh, light is completing in 1 second. So this will become the frequency. Like suppose in 1 second, the number of oscillations or the number of waves uh, are produced, which are producing in 1 second are four. So four will be the frequency.
Clear? 4 will be the frequency in that case, and the frequency we represent by nu. देखने में ऐसा लगता है जैसे v लिखा हो, but it is nu. So the number of waves which pass through a given point to 1 second is known as the frequency, and frequency we generally measured in hertz. Clear? And then next is velocity. Velocity represented by speed. Sorry, c. This is also called as speed. What is velocity? The distance traveled by a wave in 1 second. The distance traveled by a wave in 1 second is called as velocity, and it is a definite value. For light, it is 3 into 10 to the power 8 meter per second. All the radiates, all the radiation, all the radiate waves travel by this speed only. Clear? हमेशा ये speed रहेगी. This is a constant speed. So distance traveled by a wave in 1 second is called as the velocity. And another thing is amplitude. It is the height. This is. It is the height of crest or depth of trough. Depth of trough. This is called as amplitude, and it is generally expressed by a letter A. Yeah. Amplitude of the wave determines the intensity or the brightness of radiation. कि कितनी ज़्यादा bright light आने वाली है, उसकी intensity कितनी है. Then another thing is wave number. Wave number. V जैसा लिखा हुआ होता है और उसके ऊपर एक line होती है, that is nu bar. Nu bar. What is wave number? Wave number is as a number of wavelengths per centimeter and is equal to the inverse of wavelength expressed in centimeter. Means wave number is equivalent to 1 upon wavelength. Clear? Wavelength हमने किससे denote किया है? Lambda से. So it means what we can say, mu bar is equivalent to 1 upon lambda. Clear? So from this we can derive certain relationships also. See now this. First is wavelength, that is the distance between two waves that we representing by lambda, and we can measure it in either Armstrong or in picometers or in nanometers. Second is frequency, that is the number of waves which passes through a given point in 1 second, and it is represented by nu. Is represented by nu. See, this is nu. This is lambda. This is nu. Third thing is velocity, or you can say speed. We express it in c, and it is equivalent to 3 to 10 to the power 8 meters per second. So बोला जाता है कि when light travels in a vacuum तो थोड़ा सा कम हो जाता है उसका स्पीड 2.98 into 10 to the power 8 meter per second हो जाता है, but generally we will take this only, that the speed of light is fixed, that is 3 into 10 to the power 8 meters per second. Then amplitude, that is the height of crust or depth of trough, represented by A. Then wave number represented by mu bar. Mu bar is equivalent to 1 upon lambda. So unit इसकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड और आर्मस्ट्रॉन्ग पर सेकेंड और पिकोमीटर्स पर सेकेंड और नैनोमीटर पर सेकेंड, डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ कि हम वेवलेंथ किस में ले रहे हैं. नाउ देयर आर सर्टेन रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप क्या हो जाएगा हमारा, c इज इक्वलेंट टू म्यू into lambda. C यानी speed. Speed यानी velocity. Velocity is equivalent to wavelength into frequency. C is equivalent to, लिख लो इसे, C is equivalent to lambda into mu. Clear? तो mu is equivalent to C upon lambda. Clear? Mu is equivalent to C upon lambda. And because mu bar is equivalent to 1 upon lambda. Clear? तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं. And then mu is equivalent to C into mu bar. तो क्या क्या रिलेशन आ गया हमारे पास, C is equivalent to lambda into mu, यानी speed is equivalent to frequency into wavelength. Then frequency is equivalent to velocity upon wavelength, and frequency is equivalent to velocity into wave number. So ये हमारे पास कुछ इनके relations आ गए. These are the formulas which we are going to use in certain numericals. Now what they have said later on they said that they explain actually the important characteristics of electromagnetic radiation. They said that if we set two fields, like here हमने suppose electric field ले लिया and this is suppose magnetic field, and both these fields we have set
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों अगर आप देखो तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, है ना. This is electric field and this is magnetic field. So both are making a 90 degree angle. It means both are perpendicular to each other. तो अगर वो both are perpendicular to each other, तो क्या होगा, जो हमारी ये waves हैं, जो लाइट की वेव्स हैं, ये क्या होंगी, ये इन दोनों के, ना तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है ना ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर जा रही है. तो इट मींस वेव्स व्हिच हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, electromagnet and magnetic field perpendicular to each other, that waves are called as electromagnetic waves or electromagnetic radiations. What are the characteristics of these waves? What are the characteristics? These waves consist of electric and magnetic fields propagating perpendicular to each other. हमेशा क्या होगा इनमें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा. These waves travels with a constant speed of light, that is 3 into 10 to the power 3 meters per second. Then these waves travel through vacuum also. They travel through vacuum also, means these waves do not require any medium to travel. आप सबको पता है लाइट को अर्थ तक आने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती. In between there is a vacuum, then also light travel. And there are 7 identified classes of electromagnetic waves. कितनी है इसकी, 7 क्लासिफाइड है इसके अंदर वेव्स. तो अब हमें क्या पता चलता है कि जो लाइट है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला जाएगा इनको. क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला जाएगा? बिकॉज ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है. ठीक है, सेम स्पीड रहती है इसकी, जो हमारी 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकेंड. ये हमारा वैक्यूम्स में भी ट्रेवल कर सकता है. अब हमने क्या बोला, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द सेम स्पीड, है ना, but they have the different type of radiations which are differ from one another in their wavelength. क्या होगा, स्पीड तो सबकी सेम है बट इनकी जो वेवलेंथ है वो चेंज होगी. क्यों वेवलेंथ चेंज होगी? बिकॉज इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. लाइक हमें अभी क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ. तो वेलोसिटी इज फिक्स बट द wavelength will change. When the wavelength will change, frequency will also change. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है विद अ लॉन्ग वेवलेंथ हैज लो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. frequency and wavelength are inversely proportional to each other. So if you have a long wavelength, it will have low frequency with the radiation. And अगर short wavelength होगी, अगर किसी की जो wavelength है वो छोटी होगी, then the frequency will be more. तो ये सारा का सारा जो रेंज है हमारा, ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हम उसके स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं. तो स्पेक्ट्रम क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज. अगर हम सारी ये जितनी भी ये देखो, ये सब देखो, ये हमारी क्या है, ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, ये इनका दिस इज फ्रीक्वेंसीज, है ना, और नीचे हमारे पास क्या है, दिस इज वेवलेंथ. तो वेवलेंथ अगर आप देखो तो इधर से इधर अगर हम जा रहे हैं तो वेवलेंथ इज व्हाट, इंक्रीजिंग ना, वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग. और फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है इधर से इधर जाने में, इट इज डिक्रीजिंग, बिकॉज बोथ दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो इन सबको हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया. क्यों हमने अरेंज करा, क्योंकि लाइट के अंदर बहुत सारी रेज होती हैं और हर रे की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है और अलग अलग वेवलेंथ होती है. तो हमने क्या बोला कि अगर हमारे पास जो वेवलेंथ है वो आ रही है 10⁻⁻16 से लेकर 10⁻⁻12 तक, 10⁻⁻16 से लेकर 10⁻⁻12 तक की रेंज की, जो हमारे पास इतनी रेंज की जो हमारे पास वेवलेंथ की, इतनी वेवलेंथ की जो रेज हैं, दे आर नोन एज, दे विल फॉल ऑन द रीजन ऑफ गामा रेज. वो कहाँ पर आ जाएंगे, हमारे पास गामा रेज में आएंगी. उससे पहले की उससे ज्यादा जो होती हैं वो कॉस्मिक रेज होती हैं. उसके बारे में हमारी बुक में आई थिंक दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, आई हैव नॉट मेंशन्ड हियर, बट उससे ज्यादा जो होंगी हमारे पास दैट आर द कॉस्मिक रेज. ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एक्स रेज की. ठीक है, एक्स रेज हमारे पास कौन से रीजन में आ रही है, 10⁻⁻10. ये अगर हम देखें तो 10⁻⁻10 तक से लेकर 10⁻⁻6 से पहले पहले, यानी 10⁻⁻9 कह सकते हो, इतनी वेवलेंथ की हमारे पास जो रेज होंगी
वो कौन से रीजन में फॉल करेंगी, दे विल कम अंडर द एक्स रेज। ठीक है, उसके बाद यूवी रेज आ गई हमारे पास 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 वाले रीजन की जो होंगी, जिनकी वेवलेंथ इतनी होगी या फिर जिनकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज को फॉल करेगी, वो हमारी यूवी रेज में आएंगी। और देखो ये इतना बीच में जो छोटा सा आपका ये जो बॉक्स बना हुआ है, दिस इज ओनली द विजिबल रीजन फॉर अस। ये जो रीजन है दैट इज विजिबल रीजन फॉर अस, जिसकी हमारे पास क्या है वेवलेंथ। इनकी वेवलेंथ है हमारे पास 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। सिर्फ 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की जिनकी वेवलेंथ होगी, सिर्फ वही वाली लाइट, सिर्फ वही वाली रेज जो है that are visible to us, only that comes under the visible region and that is called as the spectrum। ये हमारा स्पेक्ट्रम है, जो हमारा विप और जो हम बोलते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। तो यहाँ पे वॉयलेट इट मीन्स वॉयलेट कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होता है, दैट इज 400, एंड रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है, दैट इज 700। और बाकी की सारी जो हमारी लाइट है उनकी वेवलेंथ इसके बीच में आती है। सिर्फ यही रीजन हमें विजिबल होता है, इससे कम वेवलेंथ वाली रेस और इससे ज्यादा वेवलेंथ वाली वेव्स हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब इसको आगे हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि 10⁻⁻6 10⁻⁴ की रेंज में जो आएंगी वो हमारी इंफ्रारेड हो गई। उससे ज्यादा जो है रेंज में आ रही वो माइक्रोवेव्स हो गई। उससे ज्यादा हमारे पास कैसी हो गई, रेडियो वेव्स हो गई। ठीक है, एफएम रेडियो वेव्स और एएम वेव्स। ठीक है, उससे भी ज्यादा जो हो गई वो लॉन्ग रेडियो वेव्स हो गई। तो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम में हमने अरेंज कर दिया, स्पेक्ट्रम में, कि किस किस तरीके की कितनी फ्रीक्वेंसी और कितनी वेवलेंथ की जो रेज है वो किस रीजन में फॉल करती हैं, और कौन से रीजन में फॉल होने वाली जो रेज है वो हमें दिखाई देती है। हम बोलते हैं ना ये एक्स रेज हैं, तो एक्स रेज हैं, अगर हम कैसे बोलेंगे एक्स रे है, एक्स रे हमें तब बोलेंगे जब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 10⁻18, 10⁻18 होनी चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी, तभी हम बोल सकते हैं कि वो एक्सरेज की कैटेगरी में फॉल करता है। अगर नहीं है तो हम उसको एक्सरेज नहीं बोलेंगे। अगर वो उससे ज्यादा की कैटेगरी में आ रहा है तो हम उसे गामा रेज बोलते हैं। उससे ज्यादा की कैटेगरी में आता है कॉस्मिक रेज बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। और अगर जैसी स्थिति कम होती चली जाएगी उतना वो कम होता चला जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके बारे में पूरा बताया हमें, इसकी फ्रीक्वेंसीज और ये सब हमें एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज आती है हमारे पास, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एक। व्हाट इज गिवन टू अस, they have given to us the energy level 4 and energy level 2। एक इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो एनर्जी लेवल 4 से एनर्जी लेवल 2 में जंप कर रहा है, और पूछ रहे हैं कि अगर वो इसमें जंप कर रहा है तो व्हाट इज द कलर ऑफ द रेडिएशन, जो रेडिएशन उसका प्रोड्यूस होगा उसका कलर क्या होगा। रेडिएशन का कलर हमें तभी पता चलेगा व्हेन वी विल नो अबाउट द वेवलेंथ, हमें उसकी वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी। तो ये रेडबर्ग इक्वेशन है, अभी हम आगे करेंगे इसके बारे में भी। रेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, उसके अकॉर्डिंग 1/λ इज इक्वल टू आर, आर इज रेडबर्ग कांस्टेंट, 1/n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर जो इनिशियल स्टेट है, लाइक वो क्या कह रहा है कि एनर्जी लेवल 4 से एनर्जी लेवल 2 में आ रहा है विद एन एफ होल टू एन एनर्जी लेवल विद 2, 2 से 4 में आ रहा है वो। ठीक है, और 1/n2, n2 क्या है हमारा, जहां पर वो जंप करेगा, दैट इज n2। हियर n1 इज 2 एंड n2 इज 4, और r की वैल्यू फिक्स होती है, तो हमने 1/λ निकाल लिया। ठीक है, 1/λ हमारे पास आ गया, जितना भी आया, कितना आया ये, इसको इससे हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वी विल कैलकुलेट द लैम्डा, लैम्डा मींस वेवलेंथ। वेवलेंथ जब हमने निकाली तो हमारे पास आया 486 नैनोमीटर, 486 नैनोमीटर, इट मींस इट इज कमिंग इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन हमारा कितना है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच, और इसकी वेवलेंथ कितनी आ रही है, 486 नैनोमीटर। इट मींस ये विजिबल रीजन में आएगा एंड समवेयर ब्लू और ग्रीन के बीच में बैठेगा ये, तो इट मींस जो लाइन कॉरेस्पॉन्ड करेगी वो ब्लूइश ग्रीन कलर की होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ वी कैन टेल कि जो लाइट है, जो रे है, उसका कलर क्या होने वाला है, वेदर वो विजिबल रीजन में फॉल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा पहले स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया, वेव के बारे में हमने स्टडी किया कि लाइट की क्योंकि वेव नेचर है, तो वेव होने की वजह से वो वेव्स की फॉर्म में जब आएगी तो किस तरीके से अपनी वेवलेंथ के बेस पर और फ्रीक्वेंसी के बेस पर हमें पता चलेगा कि कौन से रीजन में फॉल कर रही है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट पार्टिकल नेचर ऑफ, उन्होंने क्या बोला कि लाइट इज हैविंग द डुअल नेचर,
मीन्स वेव नेचर भी है उसकी और पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर तो हमने देख लिया कि बिकॉज लाइट जो है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, जिससे ये प्रूव होता है कि उसकी वेव नेचर है। तो क्योंकि वेव नेचर है तो हमने उसकी थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्टडी किए। नाउ वी विल सी व्हाई दे हैव सेड दैट लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर आल्सो। लाइट की जो पार्टिकल नेचर है वो क्यों बोला गया कि लाइट की पार्टिकल नेचर है। तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है रेडिएशन की, वो बिलीव करती है कॉन्टिन्यूस जनरेशन ऑफ एनर्जी में। दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट लाइट सच एज डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस एंड इन सब में ये सबको वो फॉलो कर रहा है। बट कुछ ऐसे फिनोमेना थे सच एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी लाइट शो करता है। और ये जो दोनों इफेक्ट हैं वो वेव नेचर के साथ एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। अब क्या है वो इफेक्ट, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टूडेंट? Students, whenever we heat anything, whenever we give energy to anything, so क्या होता है? Suppose we are heating iron. So iron bar we are heating in a furnace. So what will happen? It will emit the radiation and becomes dull red. पहले ये कैसा हो जाएगा? Dull red हो जाएगा. And धीरे धीरे progressively it will become more red and red and red as we increase the temperature. जैसे जैसे आप उसको और गर्म करते जाओगे और टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, वो रेड होता जाएगा और रेड होता चला जाएगा। then slowly it will become bright orange, इसका कलर ऑरेंज सा हो जाएगा, and then yellow, and then बहुत ज्यादा जब हॉट हो जाती है कोई चीज, अगर आपने आयरन की रॉड को कभी बहुत ज्यादा गर्म देखा हो, तो देन फाइनली वो व्हाइट कलर का हो जाता है ना, व्हाइट। और उसके बाद और ज्यादा करोगे थोड़ा सा तो ब्लूइश कलर हो जाएगा एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो क्या देखा हमने कि रेड कलर जो है उसकी, अभी हमने पढ़ा था, अभी मैंने आपको पिछले उसमें स्पेक्ट्रम में दिखाया था कि रेड कलर हैज अ हायर वेवलेंथ, है ना, एंड ब्लू कलर हैज अ लोअर वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ है उसकी। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ अगर हम बात करें, इट मींस रेडिएशन जो एमिट हो रही है गोज फ्रॉम हायर वेवलेंथ टू लोअर वेवलेंथ। इसका ये मतलब हो ना, हम जब गर्म कर रहे थे तो पहले तो वो रेड हुआ, बाद में वो ब्लू हुआ, और रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है और ब्लू की वेवलेंथ कम होती है। तो इट मींस जो रेडिएशन है वो जैसे जैसे हम एनर्जी दे रहे हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, द वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग, इन प्लेस ऑफ इंक्रीजिंग इट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि वेवलेंथ कम होती जा रही है, हायर से लोअर में जा रही है। तो सिंस द लोअर वेवलेंथ जो है हमारी दैट इज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ जो है हमारी दैट इज ऑफ रेड हैज अ लोअर इंटेंसिटी, है ना, एंड शॉर्टर वेवलेंथ हैव अ हायर इंटेंसिटी। दिस मीन्स दैट इफ दिस ट्रेंड विल गो ऑन, अगर हम इसे कंटिन्यू करते रहें, तो द इंटेंसिटी would keep on increasing indefinitely as the wavelength becomes shorter and shorter and may enter ultraviolet radiation, है ना। फाइनली तो यही हो जाएगा, जब वो जितना और करते रहोगे तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में चला जाएगा, विजिबल रीजन से बाहर निकल जाएगा। तो जबकि द इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन डज नॉट शो दिस। ब्लैक बॉडी जो होता है वो ये शो नहीं करता। वो क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर उसका? एन आइडल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स एंड ऑल फ्रीक्वेंसीज, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कोई एक ऐसी बॉडी जो हर वेवलेंथ और हर फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करे और एब्जॉर्ब करे, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी, है ना, इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। एंड द रेडिएशन एमिट, और जितनी भी ये रेडिएशन एमिट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्लियर? तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या होता जा रहा है? वो बढ़ता चला जा रहा है। तो अ ब्लैक बॉडी इज नॉट ओनली अ परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएंट एनर्जी बट इज ऑल्सो अ परफेक्ट रेडिएटर ऑल्सो। सिर्फ एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी, ये क्या करेगी? रेडिएट भी करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स द ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएटिंग फॉलिंग ऑन इट, है ना। तो व्हेन सच अ बॉडी इज हीटेड इट एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स और ऑल फ्रीक्वेंसीज। अगर एक ब्लैक बॉडी हर तरीके की लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है और हर तरीके की लाइट को एमिट भी कर रही है, तो जब इसके ऊपर हीट पड़ेगी तो ये सारी की सारी वेवलेंथ्स की और सारी सारी फ्रीक्वेंसीज की लाइट को एमिट करेगा। And it has been shown that no other body can emit radiant energy more than a black body radiation. तो क्या मतलब हुआ इसका? Hence a black body which is more efficient absorber or radiant is also a most perfect emitter also. तो इसका क्या मतलब हुआ कि a black body is a, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि black body जो है एक hollow space है, एक खाली स्पेस है जिसके अंदर एक छोटी सी ओपनिंग है। उस ओपनिंग में क्या हो रहा है? एनी रेडिएशन दैट एंटर्स थ्रू द small hole is reflected repeatedly from the walls and reabsorbed inside the sphere until all the energy eventually becomes absorbed.
है ना। तो ये जो वेव नेचर था हमारा, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, है ना। क्योंकि ये जो हमारा ग्राफ है, देखो इस ग्राफ से क्या क्लियर हो रहा है, दैट ईच टेम्परेचर देयर इज अ वेवलेंथ, है ना। हर टेम्परेचर पर एक अलग वेवलेंथ है, एंड देयर इज अ वेवलेंथ एट विच द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मैक्सिमम। कहाँ पर है वो मैक्सिमम? लैम्डा मैक्सिमम है हमारे पास। दिस मैक्सिमम शिफ्ट्स टू अ लोअर वेवलेंथ एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, जो हमारी वेवलेंथ है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जबकि ऐसा वेव नहीं होना चाहिए। हम जो बोल रहे थे, हमने जो वेव नेचर बताया था, जो स्पेक्ट्रम बताया था, उसके हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाने पर वेवलेंथ बढ़नी चाहिए थी। तो ये तो एक चीज एक्सप्लेन नहीं हुई। दूसरा एक हमारे पास था सेंटिनेशन इफेक्ट, स्पॉट्स ऑन जिंक सल्फाइड। हमने पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, आपने रेडिएशन वाला एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट किया। तो हमने क्या देखा कि व्हेन वी एमिट और बम्बार्डमेंट द इलेक्ट्रॉन्स, जब भी हमने इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया था, तो जिंक सल्फाइड के ऊपर हमें स्पॉट्स नजर आए थे, है ना। तो स्पॉट्स कब नजर आते हैं? स्पॉट्स तब नजर आते हैं जब कोई एक चीज पार्टिकल की फॉर्म में हिट करती है। अगर आपके हाथ में एक बॉल है छोटा सा, और आप बॉल पर मार रहे हैं, और उस बॉल के ऊपर देयर इज सम कलर, अगर बॉल जो है कलरफुल है, उस पर कलर लगा हुआ है, तो वो बॉल पर एक स्पॉट छोड़ेगा, है ना। तो अगर, लेकिन अगर आप वेव की फॉर्म में कोई चीज है आपके पास, और वो आप वॉल के ऊपर, उसके ऊपर कलर लगा हुआ है, वो वॉल के ऊपर जा रही है, तो वो क्या करेगी, वो स्पॉट नहीं छोड़ेगी, वो पूरा का पूरा वॉल को कलर कर देगी, है ना। लेकिन जब जिंक सल्फाइड, जब इलेक्ट्रॉन्स टकराए, जब लाइट हमने फॉल की, और जब लाइट फॉल करने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले, या लाइट जब टकराई जिंक सल्फाइड की ट्यूब पे, तो उसने वहां पर क्या छोड़ा, उसने वहां पे स्पॉट छोड़ा। वो जो स्पॉट है वो क्या प्रूव करता है कि जो लाइट की नेचर है वो पार्टिकल नेचर है, वो वेव नेचर नहीं है। क्योंकि अगर वेव नेचर होती तो पूरा का पूरा शीट हमारा जो है वो कलरफुल हो जाता, एक स्पॉट उस पर नहीं आता, है ना। अच्छा, ये हो गया। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या हुआ, बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल लाइट फॉलिंग ऑन एनी बॉडी एंड एमिटिंग ऑल, तो वो हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट अब्जॉर्बर, है ना। तो अब क्या हुआ हमारा, जब ये सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमेना सही हो, तो व्हेन इट विल एब्जॉर्ब ऑल, we will not be able to see anything, and then if we will emit all, we will able to see all the things। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमें कभी कभी कोई ना कोई कलर नजर आ रहा है, हम उसको वार्म कर रहे हैं, तो कभी रेड नजर आ रहा है, तो कभी ब्लू नजर आ रहा है, तो कभी व्हाइट नजर आ रहा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए था ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या तो हमें पूरा ब्लैक नजर आना चाहिए था, या कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए था। तो इससे हमारा प्रूफ हुआ कि लाइट का जो नेचर है वो हमारा पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, वो वेव नेचर ही है, ऐसा नहीं है। फिर एक और हमारे पास इफेक्ट आया, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेनली मेटल सर्फेसेस exposed to light energy that is of suitable frequency is called as photoelectric effect। अब इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया साइंटिस्ट ने, इस तरीके से एक सेटअप अरेंज किया। यहाँ पर एक ये ट्यूब ले लिया, इसके अंदर यहाँ पर एक मेटल की शीट ले ली, ठीक। इस मेटल की शीट को इस तरीके से हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी, यहाँ पर हमने एमीटर भी लगा दिया देखने के लिए कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। यहाँ पर हमने एक डिटेक्टर लगा दिया, ठीक है। और इसके अंदर से सारी जितनी भी गैस थी उसे हमने निकाल लिया। एक इवैक्यूएटेड ट्यूब हमने ये ली है, ठीक। इस तरीके से सेटअप किया गया, और यहाँ पर एक मेटल की शीट लगाई गई। अब इस मेटल के पीस के ऊपर, इस मेटल की शीट के ऊपर लाइट यानी कि यूवी रेज को पास किया गया। जब यूवी रेज को मेटल की शीट के ऊपर पास किया, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ। इलेक्ट्रॉन्स का जब मूवमेंट होगा तो करंट पास होगा, और इस एमीटर से हमें पता चल गया कि करंट जो है पास हो रहा है। करंट पास होने से हमें पता चला कि यूवी रेज जब हमने मेटल पर डाली तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलना है वो क्या शो करता है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये हमारा। whenever we put a light on the metal sheet it will show the deflection in emitter which shows the movement of electron, so that this phenomena of ejection of electrons when a light of suitable frequency fall on metal is called as the photoelectric effect। and that frequency, जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने यहाँ पर डाली है, देखो जब हम लाइट डाल रहे हैं, ये हमने यहाँ पर सेटअप सेट किया। अभी यहाँ पर हमने कुछ नहीं डाला, अभी कुछ नहीं है, सेटअप हमारा ये पूरा सेटअप अरेंज किया हमने। फिर अब हम इसके ऊपर लाइट डाल रहे हैं। इंटेंसिटी यहाँ से देखो, यहाँ से हम बढ़ाते जाएंगे इंटेंसिटी लाइट की, और यहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। अभी कुछ नहीं हुआ, हमने फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा और बढ़ाया,
तो कुछ ये पार्टिकल्स हमारे निकले, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकलने यहाँ से शुरू हो गए। तो वो फ्रीक्वेंसी जिससे मेटल की शीट पर पास करने पर, उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट जिसको मेटल शीट पर पास करने पर इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू कर दें, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। और हर मेटल के लिए ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये अलग अलग होती है। उसके बाद इंटेंसिटी को हमने क्या, ये दिस इज अ फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू है, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट लगा देंगे, लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, lambda naught is equivalent to c upon mu naught, है ना। तो lambda naught is here the threshold frequency. The threshold frequency is a frequency which is required to remove the electron from any particular metal and which is different for different metals. हर मेटल के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। तो जितनी आप ब्राइटनेस बढ़ाते जाएंगे, सब ये तो फ्रीक्वेंसी की बात। अब हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ से हम इंटेंसिटी को भी बढ़ाते गए। तो हमने क्या देखा कि जितना भी हम इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और ज्यादा 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 यहाँ पर नंबर ऑफ, हमें ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, बट एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे ज्यादा। वो क्या हो रहा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, उनका जो मूवमेंट है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी भी चीज की, वो क्या किससे पता चलेगी आपको, कलर। और इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस। जब आप टीवी देखते हैं तो टीवी में अगर आप कलर चेंज करें तो इट मीन्स यू आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, और अगर आप ब्राइटनेस चेंज करें इट मीन्स यू आर चेंजिंग द इंटेंसिटी। तो हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आने के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए। उसके बाद जितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का जो निकलना है वो कम नहीं होगा, वो निकलते ही रहेंगे। और इंटेंसिटी का क्या लेना देना है इससे, इंटेंसिटी का ये लेना देना है कि इंटेंसिटी हम जितनी भी बढ़ाते जाएंगे, ब्राइटनेस बढ़ाते जाएंगे, उससे ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलने लगेंगे, ओनली बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसमें से, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। इंटेंसिटी का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक, ये देखो ये, सो फ्रीक्वेंसी इज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है, तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड एज इंटेंसिटी इज इंक्रीज। तो इंटेंसिटी से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या, तो इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो अब हमने प्रूव कर दिया कि बिकॉज लाइट का वेव नेचर तो पहले से ही प्रूव था, बिकॉज उसमें रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे फिनोमेना वो शो करते हैं जो वेव्स नेचर को प्रूव करती थी। उसके बाद हमारा ये सिंटनाइजेशन इफेक्ट और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनसे ये प्रूव हो गया कि लाइट का जो है वो पार्टिकल नेचर भी है। अब प्लैंक्स एक साइंटिस्ट थे हमारे, जिन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी। क्या बोला उन्होंने कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड डिसकंटिन्यूअसली and not continuously, discontinuously, and in the form of small packets, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी जो है निकलती है, एंड दीज पैकेट्स आर कॉल्ड एज क्वांटम्स। ठीक है, क्वांटा और क्वांटम्स। बाद में इन्हीं को हमने फोटोन का नाम दिया। हमने क्या, साइंटिस्ट आइंस्टीन आए थे, उन्होंने इसी क्वांटम को फोटोन का नाम दिया, बट प्लैंक्स ने क्या बोला था कि एनर्जी जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्वांटा, एंड वन पैकेट ऑफ एनर्जी दैट इज ई इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू, और जो एच है दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच म्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड फिक्स होती है। तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी या जितनी ज्यादा एनर्जी आप देंगे उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, या जितनी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एच म्यू। क्लियर, अगर आप 1 मोल के लिए निकालना चाह रहे हो एनर्जी, तो E इज इक्वल टू NHV, दैट इज E इंटू 1 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34, एंड देन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी। इसी से अगर आप फ्रीक्वेंसी को निकालना चाहो तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू E अपॉन एच,
क्लियर। और जो आपका म्यू है, दैट म्यू इज ऑल्सो इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो अगर यहाँ पर म्यू की जगह हम सी अपॉन लैम्डा रख दें तो ई इज ऑल्सो इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, है ना। म्यू की जगह हम सी अपॉन लैम्डा रख दें तो ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। सो ये हमारे रिलेशंस आ जाते हैं जिससे हम बहुत सारे फॉर्मूलाज को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस E is equivalent to h mu and mu is equivalent to c upon lambda. So E is also equivalent to h c lambda. Yeah? So greater the wavelength of a radiation, lower will be the energy. जितनी ज्यादा wavelength होगी एनर्जी उतनी कम होगी, और जितनी हमारे पास छोटी वेवलेंथ होगी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, ऐसा प्लैंक्स ने बोला। आइंस्टीन ने ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और ये जो हमारा प्लैंक ने अपना थ्योरी दिया था इसको थोड़ा सा सम अप कर दिया। उसने क्या बोला कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स एंड ईच फोटोन हैज एन एनर्जी इक्वल टू एच म्यू। ऐसा तो प्लैंक बता ही चुका था। तो ईच फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल। एक फोटोन जो है यानी एक पैकेट एनर्जी का किसी भी मेटल में से सिर्फ एक ही फोटोन को निकाल, एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, ठीक है। तो whenever we increase the intensity of the light, whenever we increase the intensity, तो what will happen, the photons will increase, the number of packets will increase, क्योंकि लाइट बढ़ रही है तो उसके अंदर नंबर ऑफ पैकेट्स भी बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ पैकेट्स जब बढ़ेंगे तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलते हैं। हमने भी बोला था कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, है ना। तो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल हमने पीछे देखा था। तो वो क्यों हो रहा है वो उसको उसने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि जब हम लाइट को बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, और एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की कैपेबिलिटी रखता है। तो मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। उसके लिए उसने एक इक्वेशन भी दिया। कैसा इक्वेशन दिया देखो उसने, देखो क्या बोला था हमने कि E इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक। अब उसने क्या बोला कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सबसे पहले मेटल में से जो भी उसकी बाइंडिंग एनर्जी है, जो भी हमने एनर्जी दिया, वो एनर्जी दो तरीके से काम करेगी। पहले जो एनर्जी है वो जो बाइंड हुआ हुआ है इलेक्ट्रॉन अपना मेटल के साथ लगा हुआ है, तो वो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकालने में कंज्यूम होगी, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि एनर्जी हमारे पास एच म्यू है और जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज एच म्यू नॉट। म्यू नॉट को ले लिया हमने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ली हमने, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो इतनी फ्रीक्वेंसी के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, E इज इक्वल टू एच म्यू। तो ये जो एनर्जी है ये तो है बाइंडिंग एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए थी वो है। क्लियर। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय दिस विच इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ये वर्क फंक्शन है मेटल का, यानी मेटल को अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एच म्यू नॉट जितनी एनर्जी चाहिए। अब अगर आप एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, आपने इतनी एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया, बट स्टिल यू आर गिविंग द एनर्जी, ठीक है। तो बाकी की जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। या ये कह लो जो बाकी की बची हुई एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब एच म्यू जितनी भी आपने एनर्जी टोटल दी दैट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस के ई, काइनेटिक एनर्जी। तो इस फॉर्मूला से अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एच म्यू नॉट माइनस एच म्यू। एच को अगर हम कॉमन ले लें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट। क्लियर। तो अब हमारे पास इससे एक रिलेशन आ जाता है, क्या आ जाता है कि व्हेन म्यू इज मोर देन म्यू नॉट, व्हेन म्यू इज मोर देन म्यू नॉट, यानी जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगी एंड इन दिस केस इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्लियर। यानी जितनी आप लाइट दे रहे हैं, जितनी एनर्जी आप दे रहे हैं, उस एनर्जी में जो फ्रीक्वेंसी है वो जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इफ म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, अगर वो दोनों बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम जीरो। और काइनेटिक एनर्जी जब जीरो हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो, उसको आपने उतनी एनर्जी तो दे दी कि दोनों बराबर तो हो गए, लेकिन अभी थोड़ी सी एनर्जी उसे और चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर की एनर्जी मिल चुकी है, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा होगा तभी वो निकल पाएगा, क्योंकि निकलने के लिए थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो इन दैट केस ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा। क्लियर। उसके बाद आप क्या बोलते हो कि म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू, यानी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाए, किसकी फ्रीक्वेंसी से,
जो एनर्जी और जो जो लाइट आप दे रहे हो उससे ज़्यादा हो जाए, तो जो पोटेंशियल जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बिकम नेगेटिव, और जब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी तो नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी को पॉजिटिव जब तक रहेगी तभी तक इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। क्लियर? एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, 1/mv²। ये तो हम पिछले फॉर्मूला से देख ही चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो इट मीन्स 1/2 mv² इज ऑल्सो इक्वल टू h म्यू माइनस म्यू नॉट। ये रिलेशन हम इससे डिराइव कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर आपको जो भी क्वेश्चन में जो दिया होगा उसके हिसाब से हम फॉर्मूला में पुट करके वी कैन कैलकुलेट। ठीक है? तो अब क्या इसका कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन क्या निकला कि इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन के बेस पे वी कैन से दैट लाइट हैज अ वेव नेचर, बट ऑन द अदर हैंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये जो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इन सब के बेस पर हम कह सकते हैं दैट लाइट हैव अ पार्टिकल नेचर। सो ऑल इन ऑल व्हाट वी कैन से दैट लाइट हैज अ डुअल नेचर। दोनों नेचर वो शो करता है। उसके बाद सेकंड फिनोमेना आता है हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, अब ये क्या चीज है स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं, इसको समझते हैं हम। Now what is this atomic spectra, students? You all know that when a beam of light, like the light from sun or from any other source, when it is passed through a prism, it splits into the series of color bands, जिसे हम रेनबो भी बोलते हैं, विबग्योर भी बोलते हैं, because it contains 7 colors, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. The red color with the longest wavelength, because इसका जो डेविएशन है वो सबसे कम है, एंड द वॉयलेट कलर जो है दैट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो इसका जो डेविएशन है वो सबसे ज्यादा है। ये जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है, यू पीपल हैव स्टडीड अबाउट इट, दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एंड कलर बैंड जो हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। So in this spectrum, if you see, there is continuity of colors. All the colors are, merges into each other. रेड कहाँ खत्म हो रहा है, ऑरेंज कहाँ शुरू हो रहा है, ऑरेंज कहाँ खत्म हो रहा है, येलो कहाँ शुरू हो रहा है, पता नहीं चलता. They all are merged into each other. So this type of spectrum where all the colors are continuous, where there is no gap in between the color, that type of spectrum is called as continuous spectrum. तो ये जो सनलाइट जो हमें देता है स्पेक्ट्रम, दैट इज अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम. बट उसके अगेंस्ट इफ वी सी द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जब एटॉमिक यानी एटम्स के स्पेक्ट्रा को जब देखा गया, तो ये एनालाइज किया गया कि इनका जो स्पेक्ट्रम है दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूस. द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम इधर कंसिस्ट ऑफ शार्प वेल डिफाइंड लाइंस और बैंड्स. ठीक है, अलग अलग तरीके के वो शार्प लाइंस दे रहा था और कहीं पे कलर्स दे रहा था, बैंड्स दे रहा था. तो बेसिकली एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है हमारा, वो दो टू टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो साइंटिस्ट हैव सीन. वन इज द एमिशन स्पेक्ट्रा एंड अनदर इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. अब क्या है ये दोनों और कैसे देखे गए? बेसिकली ये जो स्टडी की गई थी हाइड्रोजन के ऊपर ही की गई थी, हाइड्रोजन गैस को ही लिया गया था, तो उसी का स्पेक्ट्रम हम देखेंगे. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एमिशन स्पेक्ट्रम. एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या है ये स्टूडेंट्स, उन एटम्स के लिए होता है एमिशन स्पेक्ट्रम जो एक्साइटेड स्टेट पर चले जाते हैं. द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर ऑन एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट मतलब उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी है पहले से. Clear? So emission spectra are obtained when the radiation emitted from the substances which have already absorbed the energy. जिन्होंने पहले से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी है, यानी वो अपने एक्साइटेड लेवल पर जा चुके हैं ग्राउंड से, वही एमिशन स्पेक्ट्रा को शो करते हैं. तो अब एक्साइटेड स्टेट पे चला गया एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तो एनर्जी ज्यादा कोई नहीं रखना चाहता. कोई भी एटम जिसके पास ज्यादा एनर्जी होती है वो स्टेबल नहीं होता है. किसी भी एटम को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपनी एनर्जी को कम करना पड़ता है. कम एनर्जी पर ही वो स्टेबलाइज हो सकता है, तो वो एनर्जी को एमिट करेगा ही करेगा जरूर. तो व्हाट हैपन हियर, वी हैव टेकन अ हॉट गैस. हॉट गैस व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज़ आई एम सेइंग यू कि एक्साइटेड एटम्स हैं, वो एक्साइटेड तभी होंगे जब उनको एनर्जी मिलेगी. एनर्जी लेकर वो अपनी एक्साइटेड स्टेट पे चले गए, और जब वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं, क्या किया हमने, एक यहाँ पर हम डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया हमने, उसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस ले लिया, उसे बैटरी से अटैच कर दिया जिससे उसे वार्म कर दिया गया. ठीक, यहाँ पर एक स्लिट लगा दी गई, स्लिट के अंदर एक होल कर दिया गया जिससे यहाँ पे निकलने वाली रेडिएशन को स्टडी किया जा सके. उसके सामने एक प्रिज्म लगा दिया. प्रिज्म से जब लाइट निकली तो यहाँ पर स्पेक्ट्रोमीटर लगा दिया. स्पेक्ट्रोमीटर इज अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट
by which we can see the atomic spectra. एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी किया जा सके ऐसी डिवाइस को कहा जाता है स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर लगा दिया गया और स्पेक्ट्रोमीटर से जब देखा गया तो स्पेक्ट्रम जो है हमें इस तरीके से नजर आया। मतलब यहाँ पर आपको 7 कलर्स नहीं नजर आ रहे ना, दीज आर नॉट 7 कलर्स, यहाँ पर आपको किसी किसी कलर की लाइन नजर आ रही है। तो क्या हुआ होगा, इट मीन्स ये जो है इसने सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब तो कर ही रखा था। अब इस गैस ने कुछ ही वेवलेंथ की रेज को या कुछ ही वेवलेंथ की लाइट को क्या करा, एमिट करा, रेडिएट करा। और जिसको इसने एमिट करा, जिस कलर की लाइट को इसने रेडिएट करा, सिर्फ वही कलर हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बिकॉज सारे कलर्स तो उसने रेडिएट किए नहीं। तो जो जो कलर्स को वो रेडिएट करेगा वो कलर्स हमें यहाँ पर नजर आएंगे। सो दिस इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, है ना, ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है। तो ये जो हमारा स्पेक्ट्रम है स्टूडेंट्स, इसे हम एक तरीके से ये हम कह सकते हैं ये लाइन स्पेक्ट्रम है, क्योंकि लाइंस के फॉर्म में नजर आ रहा है। और ये एक तरीके का एक फिंगरप्रिंट होता है, जैसे एक फिंगरप्रिंट होता है ना, हर आदमी का अलग अलग होता है, और फिंगरप्रिंट से आप पहचान कर लेते हो कि ये आदमी वो है। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। लाइक अगर आप सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम में आपको येलो कलर के लाइंस नजर आएंगे। ठीक है, तो अगर येलो कलर के लाइंस नजर आ रहे हैं तो इट मीन्स जो है वो क्या है, सोडियम है। बिकॉज सोडियम की जो फ्रिक्वेंसी है, जो उसकी वेवलेंथ है, वो कितनी है, 589 नैनोमीटर से लेकर 589.5 नैनोमीटर तक है। और अगर हम अपने स्पेक्ट्रम में देखें तो इतना जो हमारा वेवलेंथ है वो कहीं पर येलो कलर के आसपास हमें नजर आता है। क्या, तो इतनी वेवलेंथ है वो डिसाइड करेगी कि कौन सा कलर उसका होगा, और उस कलर के बेस पर वी कैन रिकॉग्नाइज कि ये जो स्पेक्ट्रम बना है ये किस एलिमेंट का स्पेक्ट्रम है। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स शो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इन द लाइन स्पेक्ट्रम। सेकेंड हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को किस तरीके से देखा गया, अगेन हेयर वी हैव टेकन अ डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर फिर से हाइड्रोजन गैस को ले लिया गया, उसे वार्म अप नहीं किया, वार्म किया गया, यहाँ पर उसके सामने स्लिट लगा दी गई। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक सोल्यूशन ले लिया आपकी बात, लाइक सपोज वी हैव टेकन द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से ये लाइट पास होगी। जब ये सोल्यूशन से पास होगी, कोल्ड गैस हमने लिया, यहाँ पे हमने उसको वार्म नहीं करा, और यहाँ पर हमने क्या करा, एक सोल्यूशन से उसे पास करा है। जब सोल्यूशन से पास कराएंगे तो वो सोल्यूशन कुछ लाइंस उस सोल्यूशन में से कुछ उसको वो क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर यहाँ पर लगा दिया प्रिज्म, प्रिज्म में से लाइट निकलेगी, आगे लगा दिया स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से जब स्टडी किया गया तो अब की बार हमें क्या नजर आ रहा है, हमें एक स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है, बैंड्स नजर आ रहे हैं कलर के, और बीच में कहीं कहीं ब्लैक नजर आ रहा है। इट मीन्स एट दैट प्लेसेस द कलर इज नॉट विजिबल। मतलब उसने क्या किया, उसने एब्जॉर्ब किया कलर। ठीक है, तो जो डार्क लाइंस हैं हमारी वो क्या शो कर रही हैं, डार्क लाइन जो है वो वाले कलर उसने एब्जॉर्ब नहीं किया है, ये वाला कलर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है। तो ये जो पोर्शन है उसका ये ब्लैक ब्लैक रहेगा, तो दिस इज डार्क। अदरवाइज एक तरीके से ये हमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ही नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एंड व्हेन एब्जॉर्ब हो रही है गैस हमारी, तो क्या हो रहा है कि when a continuous electromagnetic radiation is allowed to pass through a gas or a solution of some sort, then transmitted light is analyzed, we obtain a spectrum in which dark lines are observed in an otherwise continuous spectrum। अगर आप देखो तो पीछे वाले में जहां जहां हमें लाइंस नजर आ रही थी, यहाँ वहीं वहीं हमें डार्क नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये दोनों स्पेक्ट्रम, लेकिन एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन व्हेन रेडिएशन एमिटेड द लाइट from the excited state, and we study in spectrometer. An absorption spectrum is obtained when the white light is first passed through a substance, through a solution, through a gaseous state or any solution, and then transmitted light is analyzed with the spectrometer। इसमें हमने क्या करा, एक solution के थ्रू पास करा। एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो कंसिस्ट करता है ब्राइट कलर्ड लाइंस को, विच आर सेपरेटेड बाय द डार्क स्पेसेस। यू कैन सी है कि देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारा कौन सा स्पेक्ट्रम है, दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम। सीधा एक्साइटेड गैस यानी वार्म गैस को लिया, ठीक, इसे हमने स्लिट से पास कराया, प्रिज्म है, प्रिज्म से गया, और यहाँ पर हमने कलर्स देख लिए, स्पेक्ट्रोमीटर से स्टडी किया, ये हमें एमिशन स्पेक्ट्रम मिला। कहीं कहीं पर लाइन, यहाँ हमने क्या किया, सोर्स ऑफ लाइट को हमने लिया, बीच में हमने कोई ऐसा सैंपल ले लिया जो इसमें से कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा।
ये जो सोल्यूशन हमने लिया है इसमें से कुछ कलर्स की वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर स्लिट में से जब पास होकर प्रिज्म में से निकला तो यहाँ पर हमें कलर दिखाई दिया। इसमें से अब जो कलर्स ये सोल्यूशन एब्जॉर्ब कर चुका है वहां ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, अदरवाइज इट इज कॉन्टिन्यूस। और इसमें इसके पास सारे ही कलर अपने पास रखे हैं, इसने सिर्फ कुछ ही कलर को एमिट किया है। जिन कलर्स को एमिट किया वो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो हमें यहाँ पर लाइंस नजर आ रही हैं वो यहाँ लाइंस गायब है और बाकी पोर्शन यहाँ ब्लैक है और बाकी पोर्शन यहाँ कलर है। तो क्या है ये, है ना, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ब्राइट colored lines separated by dark spaces, and in absorption spectra consist of dark lines and otherwise continuous spectrum। ठीक है, तो ये पूरा जो है हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर स्टडी किया गया था। ये और अब जब हमने देखा कि अलग अलग गैसेस को जब लिया गया तो उनके अलग अलग उन्होंने स्पेक्ट्रम शो किए। देखो ये बेरियम का स्पेक्ट्रम है, कौन सा वाला लाइन स्पेक्ट्रम, ये बेरियम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ये हीलियम का स्पेक्ट्रम है, ये नियॉन का है, ये सोडियम का है, ये मर्क्यूरी का है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक एलिमेंट का जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग आएगा, वो उसके फिंगरप्रिंट की तरह यूज किया जा सकता है। यानी अगर ऐसा स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिले तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन है, हाइड्रोजन गैस है। इस तरीके का नजर आए तो हीलियम है, इस तरीके का नजर आए तो नियॉन है। हर एक का जो अपना अलग अलग वेवलेंथ होती है उसकी, उसके हिसाब से वो कलर्स शो करेगा। क्लियर, ये आ गए हमारे पास दो तरीके के स्पेक्ट्रम। ठीक, अब क्या हुआ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया इसके बेस पे। तो द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया जब इसे स्पेक्ट्रोमीटर से स्टडी किया गया। इन 1885 में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए जे बार्मर, उन्होंने डेवलप किया एक रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ्स ऑफ द सीरीज ऑफ विजिबल लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्योंकि हाइड्रोजन का जब स्पेक्ट्रम देखा गया तो उसमें बहुत सारी लाइंस हमें नजर आई। some wavelengths were falling on the visible region and some were falling in the ultraviolet and infrared regions also। मतलब हाइड्रोजन के जब स्पेक्ट्रम को स्टडी किया तो बहुत सारी अलग अलग लाइंस नजर आई। कुछ लाइंस तो विजिबल रीजन में थी और कुछ हमारी अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रीजन में थी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए बार्मर, उन्होंने एक रिलेशनशिप डिराइव किया। क्या था वो रिलेशनशिप, दिस वाज अ रिलेशनशिप, ये 1 upon lambda is equivalent to RH, RH is Rydberg constant, 1 upon n1 square 1 upon n2 square। n1 मतलब जो उसकी इनिशियल स्टेट है इलेक्ट्रॉन की, एक शेल से दूसरे शेल में जब जंप करेगा एक्साइट होके या फिर वहां से वापस आएगा तभी तो स्पेक्ट्रम बनेगा ना। स्पेक्ट्रम बनेगा कब, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और वो अपने हायर लेवल में चला जाएगा एक्साइट होकर, और फिर जब हायर लेवल से वापस अपने लेवल पर आएगा तो या तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा या जब एनर्जी एमिट करके नीचे आएगा तभी स्पेक्ट्रम बनेगा। तो दिस इज द इनिशियल शेल एंड दिस इज द फाइनल शेल जहां पर वो आएगा। तो ये रिलेशनशिप उसने दिया, उसके बेस पर उसने क्या बोला कि वी कैन कैलकुलेट 1 upon lambda, और 1 upon lambda अगर हमारे पास आ जाता है तो लैम्डा वी कैन कैलकुलेट, वेवलेंथ वी कैन कैलकुलेट, और वेवलेंथ के बेस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो विजिबल रीजन में फॉल कर रहा है या फिर अल्ट्रावायलेट में या किसी और रीजन में। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी। तो जो सबसे पहले हमारे पास बाल्मर आए, बाल्मर ने क्या बोला, बाल्मर ने स्टडी किया कि N2 से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है, मतलब सेकंड वाले शेल से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है थर्ड में या फोर्थ में या फिफ्थ में या सिक्स में, तो क्या उसकी वेवलेंथ होती है। तो उनकी वेवलेंथ को जब स्टडी किया गया तो वो सब विजिबल रीजन में फॉल करी। फिर लाइमन साइंटिस्ट थे, लाइमन ने फर्स्ट वाले शेल से अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जाता है तब उसकी क्या वेवलेंथ होती है, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया तो वो अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल किया। फिर ऐसे ही ब्रैकेट, पिफोन, पैस्टन, इन सबको अलग अलग स्टडी किया गया। इन सब ने जो इनिशियल स्टेट है वो अलग अलग ली कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से जब जंप करेगा तो उसकी अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करेगा, सेकंड से जब जंप करेगा तो विजिबल रीजन में फॉल करेगा, थर्ड से जब जंप करेगा तो इंफ्रारेड रीजन में फॉल करेगा, और फिर फोर्थ से जब करेगा तो भी इंफ्रारेड में, और फिफ्थ से जब करेगा तो फिर भी इंफ्रारेड में फॉल करेगा। तो इन सब को मिलाकर रिडबर्ग ने हमें एक इक्वेशन दे दी। उसने बोला कि कुछ किसी भी रीजन से किसी भी रीजन में फॉल करे, उसका अगर हमें निकालना है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस बन रही हैं, तो दैट इज इक्वलेंट टू 1 upon lambda is equivalent to r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। उसके बेसिस पे we can calculate the lambda, and on the basis of lambda we can tell that where the electron will fall, whether it in the visible region or in the ultraviolet region।
ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और मैंने आपको बोहर में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी का यूज करके बोहर ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो रदरफोर्ड का जो प्रॉब्लम था कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो उसने एक्सप्लेन किया था। ठीक, सो आज इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।